Good morning, everyone. Thank you all for joining. Good morning, sir. Thanks. Morning, sir. Good Good morning, sir. morning, sir. So, guys, Aniket has an update on Sammy. Others have also done, but Aniket, please start. Can you share your screen? Yeah, for sure. Is it visible, sir? It's visible. Yes. Hello. Hello. Yeah, it's visible. It's visible. Yeah. So, good morning, everyone. As you all know, Sami reported the Q3 FY26 results, and we discussed it yesterday. I went through the conference call, and I'll give you the key updates and what were the highlights and what were the future-looking statements, what management guided. So on the operating performance, as we discussed yesterday, it was the RevPAR stood around 13.3% growth at 5,600. And this was management said like this was the third consecutive quarter when the company showed double-digit growth on the RevPAR side on a higher base. If we go into the upper scale segment, the occupancy was 71%, and the management then again told like the occupancy was on a low scale due to the December interruptions on the airline operations, which cancelled majority of their events on the MICE conference and group events, which affected this occupancy. Coming to the mid-scale and the upper scale segment, the occupancy was roughly around 72 to 75%. If we see the revenue mix, majority is coming from the upper scale. And again, the management reiterated the fact that this was due to one-off for the renovations and the increase which is going on. And this will go like the scale will go to 60% over time. The shift, the upper mid scale showed 41%, and the mid scale showed a 17% revenue mix for Q3 FY26. If we see the incremental margins and the cost performance for this quarter, the incremental margins were 44%, which was a good growth. But then again, management reiterated this can increase to 55% over time due to the renovations which are going on. And also, 11 million labor code and the GST input tax credit adjustments were there for this quarter, which will not repeat going forward. And the EBITDA margins at asset level were 40%, and ACIC, which was their strategic expansion and acquisition, which they acquired a year back, their EBITDA margin stood at around 40.3 to 40.5%. And also on a net debt to EBITDA level, it was comfortably 2.5 times. If we see their expansion plans, the company operates currently at 4,900 rooms, and they are expanding and rebranding their rooms about 473, and they'll also come with new rooms about 1,400. Which are And these rooms into, Aniket? Upscale, these midscale? into all the three segments, and these Okay. are majority on the asset light on the lease model. Okay. Then, if we come to the new openings and the same store growth, their Whitefield Bangalore delivered a 15% revenue growth and a 13.5% RevPAR. And this Whitefield Bangalore operates 160 rooms. And if we see the Kolkata is on a silent scale, but they are growing very rapidly. Their RevPAR was about, ARR was around 45, 4,500,
Occupancy was 62%, and it also contributed 60 million to the top line since it opened. And their recently opened properties, Sheraton Hyderabad and Pune, will give contribution from Feb and March. Also, if we talk about the Trinity Bangalore, like they took over from Marriott, and they completed a 70 million interim renovation, and they also planned a 250 million refurbishment during this year. This will contribute to their revenue about 30 million, which has increased from 1.8 earlier. And their ARR also doubled. Like previously, the ARR was about 4,500 to 5,000. Now the ARR after refurbishments will come up to 10,000, and the occupancy is roughly around 50%. And this operations will be fully stabilized by FY27. If we see like the major brand partnerships and the major contributors, Marriott tops the list with about 66% of their asset income, along with Hyatt and IHG, each contributing 17%. So, guidance and outlook, what management gave for the coming quarters and for the coming 2 to 3 years, management says like the total revenue per available room will grow on a double-digit base. This is supported by the demand and pricing power. Also, they highlighted the fact that the supply and demand breaches there, which will increase the same store RevPAR growth at around 9 to 11% for the next 2 to 3 years. They also told like they have a cash balance of 3 billion, roughly around 300 crores. But due to this interest rate decrease and operational flexibility, the cash balance can go up to 400 crores, which will help in their scalability and expansion in the coming future. And also, they are targeting a 30 billion, roughly around 300,000 crore revenue by FY30, majorly from upper and upscale and same store growth and their operating leverage, which will kick in. अनिकेत इसका अपस्केल इज अराउंड 5000 RevPAR ऐसा है? जो अपस्केल तुमने लिखा था स्टार्टिंग में, Yeah, sir. Yeah, तो ये 5,000. ऐसा क्यों है? आई थिंक इतना कम कैसे अपस्केल बोलते हैं? No, sir. Upper ARR कितना scale होगा में है इसका 8,800. वो ओवरऑल था 56 ओवरऑल का? अच्छा, एंड जो RevPAR इसका ये रहा ये तो इसका 12000 ही है ARR, तो ARR अपस्केल 12. बोला है। अच्छा, ओके। RevPAR And that 80. is coming to around 8,000. And you are saying that 71% of the revenue is coming from there. 71% of the revenue is coming from upscale, no? लिखा था मैंने। Sorry, 45%. 44. Sorry, बट sorry. The मैनेजमेंट occupancy. वो मिक्स चेंज करेगा एंड इट विल सम अप टू अराउंड 60% थोड़े टाइम में. Upscale. Yeah. या करेक्ट. Okay. So anything on the industry part कि कौन से एरिया से? कोलकाता के बारे में तुमने कुछ बोला, सॉरी आई मिस्ड इट। वहां से क्या हो रहा है? कोलकाता में सर लाइक वन पर्सन आस्क्ड कि आपका स्प्लिट क्या है अक्रॉस द स्टेट्स. सो हाँ, मैनेजमेंट टोल्ड कि कोलकाता हमारा रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है. वो साइलेंट है, किसी को पता नहीं लग रहा है, बट देयर ARRs आर इंक्रीजिंग. ऑक्यूपेंसी भी अराउंड 60 to 65% है. एंड जब से उनकी होटल खुली है यहाँ पर 60 मिलियन बट अबाउट 6 करोड़ उनने टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन दिया है. मतलब ये 1 साल पहले कुछ खुला था एंड तब से अभी तक 6 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया है वहां से. अच्छा, ओके ओके। एंड बाकी अपार्ट फ्रॉम कोलकाता? बैंगलोर की उनने बात करी थी, वहाँ पे 15% रेवेन्यू ग्रोथ करा है एंड रेवपार अबाउट 13.5. एंड शेरिटन हैदराबाद एंड हयात पुणे अभी रेनोवेट कंप्लीट हुआ है वहाँ पर रेनोवेशन. सो वो फेब एंड मार्च से कंट्रीब्यूशन करेंगे अपना. 7 months, ओके ओके। एक हयात ट्रिनिटी के आई थिंक बैंगलोर दो भी. है पुणे में, कौन सा उनका कौन सा है? देख लेना एक बार। श्योर. दो है, हाँ। हयात रेजेंसी एंड दो ऐसा कुछ है। बस दैट्स बिकॉज व्हाई वो मेरे यहाँ पे है मतलब मेरे एरिया में है, एंड आई सी दैट इट इज अ कॉर्पोरेट हब। ओके. दो है वहाँ पे, सामने सामने ही है, बट आई एम नॉट श्योर कि सर दोनों अलग स्टोर हयात है। रेजेंसी इनका है, सामी होटल्स का, जो विमान नगर में है। हाँ, और दूसरा? दूसरा आई एम नॉट श्योर। अच्छा, ओके।
Okay, good one, Aniket. So, Aniket, this is now so if when you're tracking a sector, probably ये सबके you should have an analysis कि पूरे चार पांच कंपनीज में कॉन्फ्रेंस कॉल में हुआ क्या है ओवरऑल. तो एज मैं कोलोकेशंस क्यों पूछ रहा था बिकॉज इफ दे आर सेइंग दैट बैंगलोर इज ग्रोइंग हैदराबाद इज ग्रोइंग तो हमको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी हैदराबाद और बैंगलोर में कौन प्रेजेंट है. Yeah, sir, correct. ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर. Done, So sir. now अभी वही करो कि start preparing reports on the companies that you think that will be the top one company. तुमने कितने कॉन्फ्रेंस कॉल बोले सैमी हुआ फिर सैमी, लीला और ला आईटीसी का हुआ नहीं सर. का नहीं हुआ करेक्ट. हमारे रिजल्ट्स तो देखे ना उसके रिजल्ट्स तो है ना. रिजल्ट्स अच्छे थे. हाँ ला आईएचसीएल अभी आएगा आईएचसीएल फाइन. शैलेट So और that you have इनका to लाइंड है नेक्स्ट वीक. select. So you have to शैलेट find बेनिफिट. from the एक investment thesis. If I ask you what is the investment thesis of this एक कोई अच्छा which company you like and why. So you should have that reasons. Valuation तो अभी ठीक है वो तो it will come later on. But as of now, where do you see the growth coming from and who has the highest presence in those areas? Basically, locations, ARR, industry, थोड़ा ध्यान रखो. श्योर सर. Yeah, Bobby, anything on TVS? Yes, sir. I'll just share my screen. Um, is it visible? Uh, Uh, is my screen visible? no, Bobby, not yet visible. Sir, it's Uh, visible. Acha, okay, it's not loading in my. Oh, okay, sorry, I have some network issues. Yeah, it's visible now. Sorry, Bobby. Yeah, so I will be giving update on TVS Q3 FY26 result update. So TVS delivered the highest operating revenue, driven by highest volume across all motorcycles, across all segments, motorcycles, scooters, EVs, mopeds, and three-wheelers. Reason being, the GST 2.0 in September 22nd, 25, low inflation of around 1.3% in December as per RBI and festive season. So the TVS Motor revenue it rose by 32.5%, and it was driven by record volume of 1.54 million. It was led by motorcycles with a growth of 30.6%, ICE scooters 21.5%, and EV scooters 41.3%, moped 7.5%, and three wheelers reached more than double year मैं on नहीं year. मिलती हमें चीज यही बार रख देते पता है. तो And उस चक्कर में क्या रखे ना चीजें घर नहीं में. देखो ये पड़ा होगा ये नहीं One रख के second. तुम भागा. One second. Sorry, go ahead, Bobby. yeah. So and gross margins fell by 162 bps due to commodity inflation, with aluminum, copper, zinc, platinum, palladium, and rhodium. So these are the products which are used, but due to the inflation, and there was a price hike of 4% due to this. And EBITDA grew by 40 bps due to 55 bps decrease in employee expense and 120 bps in other expense. So other expense included packaging, freight expenses due to the volume growth, and marketing expenses for the new launches. PAT increased by 46.3% and its margins increased to 60 bps. So, coming to the major growth driver was that the domestic ICE, ICE sales grew by 21% year on year against an industry growth of 26%. So, the main driver for this was TVS, with Yes, the what? Sorry. most TVS Sorry, Jupiter. Sorry. Jupiter. Huh. Yeah. Sorry. TVS Jupiter with 356.4K units,
19.6% year on year. It contributes around 32% of sales. TVS Apache with 154.4 units, 49%, 44.9% year on year. So it contributes around 14% of sales. In EVs, it grew by 41.3% against industry's 7.5% from TVS iQube and TVS Orbiter. So TVS Orbiter was launched in Q2. So a combined sales of 106K units, contributing around 9.4% of sales. And in international two-wheelers, the company volume grew by 31% year on year, outperforming the industry standard of 26% growth. This is driven by strong demand in Africa, Latin America, Asia, while Europe remained weak. This is the product portfolio. What I could understand from this product portfolio is, if you see, Apache is premium, but Ronin and Apache RR310. So these three are, what you can say, they are in super premium range, and they are above 200 cc's. Like RR310 is 300 cc and Ronin is around 220 cc. So these are, what you say, super premium category. And if you see, the growth is 1.3 times over here and 76% over here. So you can see that TVS is gaining a lot in due to premiumization. Yeah. So what I can see for the next quarter is that the growth is supposed to pick up by 8% industry wise in quarter four, due to, with also rural demand having 19% growth, narrowing the gap with urban with 21% in Q3. Okay, so due to this GST cuts, it led to 7,000 saving for entry level mopeds, motorcycle, and three wheelers. Management expects rural demand to recover and converge with urban, maintaining a 50-50 urban mix over the medium term due to GST led affordability and sustained road and infrastructure spending. Also, new Norton Superbike is to be unveiled in April 26. So this would redefine the this would be more premium compared to the Ronin and other bikes. And management expects the two-wheeler industry to sustain this momentum by high single digit in H1 FY27 and mid single digit and mid digit in FY27. Yeah, due to the structural infrastructure build out, affordability, self-employment led mobility, and a GDP growth of 7.2% for FY27. These are RBI estimates. So, yeah, that's it from my side. Uh, so Bobby, so this report, should also consider about industry, what is happening in the industry. Now we are talking about the UK FTA, sorry, Europe FTA treaty. Now you should also talk about, what will happen when, because you said Europe was weak. So do you think it will recover? Now when you talk about, okay, premium segment, so what is exactly happening in the premium segment? Why they are growing? So you should, mean, we know that it is growing because of the premiumization and all, but you should also mention that in the report, because the one who is reading it for the first time should understand why the premium is growing. Okay, I'll Okay. add that point which I had Yeah. said about the Ronin and everything. Noted. Yeah. Yeah. So you also have to talk about those points, because at the end, we need to tell this to a layman, what is happening in this industry and why these products are growing. Yes, yes. Okay. Noted. I have written about industry growth, anyways, over here. Like, No. So why the industry is growing? What is happening? So see, so why? the purpose is, yesterday also I told, that when you are doing a report, analysis to anyone can do. Let's say when you write conference call analysis, anyone can do. But you are tracking that industry from so many days, so many months. So what is leading to all those growth?
though it is not written over there, but you should tell your assumption. Okay, Yes, these are the reasons. I'll do that. I'll do that. I'll do that. So that is where your experience matter, because conference call highlights nowadays AI can also write. Yes, yes, But yes. AI doesn't know why it is increasing, because obviously it was not told in the conference call that it is increasing because of premiumization. Yes, yes. Okay. I'll write that. I'll write that. So always, others also, when you write a conference call, you need to talk about things which are related to the industry. Understood. If not, then it is just an update. I'll keep that in mind, sir. Yeah. Okay. Yeah. Go. Ankita. Ankita also has something on Sammy. Ankita. Yes, sir. Yeah. So I have made a report on Sami Hotels as well. Hmm. So should I? Share again. Yeah. Share. No? Yeah. Okay. Uh, Yeah. So good. yeah. So Sami Hotels had a strong quarter in Q3 FY26, even though December saw some temporary disruptions due to airline issues. Despite this, total income grew 16% year on year to 3.4 billion, mainly because hotels were able to charge higher room prices and the business travel demand remained steady. So this shows that demand was healthy and the customers were willing to pay more. The biggest driver this quarter was the pricing power. Average room rates went up to 16% year on year, especially in the key business cities like Mumbai, Bengaluru, and Hyderabad. Also, even though the occupancy was slightly lower for a shorter period, higher prices more than it made up for it. The drop in the occupancy was temporary. Airline disruptions led to some conference and group travel cancellations in the month of December. But many trips were only postponed. The management confirmed that bookings for February and March are strong, which means this demand is likely to shift in the Q4. Further, the business hotels continue to perform well because corporate travel remains stable. At the same time, food and beverage revenue grew 10% year on year, helped by the renovated halls and reopenings. Sami Hotel mix also helps stability. The company operates across mid-scale, upper scale, and the upscale hotels. Upscale hotels earns higher room rates, while the mid-scale hotels recover faster during the disruption. Further on cost, management showed good discipline. Salary, utility, and the management cost stayed under the control. Because fixed costs are stable, any future revenue growth will directly support the profit. New and the renovated hotels like Trinity, Bangalore, Whitefield, Bangalore, and the Kolkata properties are improving and are expected to contribute more meaningfully from FY27 onwards. So to conclude, Sami Hotel delivered a resilient Q3 performance driven by the strong pricing and steady business travel. Yeah, that's it. Okay. Ankita, it was good. I think you have written it very well comparatively. तो अनिकेत ना इसका चेंजेस थे जो तुम्हारे इसमें नहीं थे, थोड़े बहुत चीजें जो ओवरऑल थियोरेटिकल बातें थी. यू फेर मोर ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट. बोथ इज फाइन, बट प्रोबेबली ये सब चीजें भी इंक्लूड होनी चाहिए. दैट ऐसा बोल रहे हैं कि ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है. So bring it to the ground level. The more you bring it to the ground level, relate it to layman, so it goes.
looks well. So Ankita, you have to work something on the presentation now. In your report, there was something about uh, about the theory, but the practical was missing. Practical part was missing, जो अनिकेत ने बोला था. हाँ रेफ सर, पार इंक्रीज हो ARR गया. and the RevPAR part. हाँ या तो वो यू कैन मिक्स दैट कि रेफ पर क्यों ग्रोथ हुआ था. रेफ पर ग्रो हुआ था इज बिकॉज ऑफ द ये सब डिमांड आ रहा है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगा बिकॉज बुकिंग्स हाई है फरवरी मार्च में. जो रिनोवेशंस थे ऑब्वियसली व्हेन रिनोवेशंस विल कम सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड विल इंक्रीज. यू कैन आल्सो पुट योर एनालिसिस इनटू इट कि अभी Yeah. अभी ऑक्यूपेंसी 72% है. जैसा अनिकेत तुमने बोला कि अभी ऑक्यूपेंसी 72% है. तो इट इज बिकॉज वंस दिस तो शेरिटन सॉरी योर पुणे का एंड इसका आ जाएगा हैदराबाद का तो ऑक्यूपेंसी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बिकॉज दिस आर बिजनेस सिटीज एंड बिजनेस सिटीज में बाकी हम रोज पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में तो बिजनेस सिटीज में ग्रोथ हो रहा है. तो अगर पुणे की बात है तो आई विल से पुणे मतलब विनितिव के बारे में तो यू शुड नो एवरीथिंग बिकॉज विनितिव हैज द हाईएस्ट पोर्शन इन योर पुणे. सेम में अगर राजस्थान की कोई बात है तो हमको पता है चैलेट का मेजरली ईएच का मेजरली रेवेन्यू राजस्थान से आता है. तो ये सब चीजें इज इंपॉर्टेंट एंड यू कैन पुट ऑल दोस थिंग्स इन द रिपोर्ट. इट विल टेक टाइम बट अभी मैं तुमको भी लिंक कर रहा हूँ कि तुम जो दोनों जो लिखा है इट वाज गुड. दोनों ने अच्छा लिखा बट बोथ वेर गुड इन दैट सेंस. नथिंग वाज तो इफ यू मिक्स बोथ द थिंग्स इट लुक्स अ गुड रिपोर्ट जहाँ पे यू टॉक अबाउट प्रैक्टिकल प्लस प्लस द थियोरेटिकल. ऐसा है. ओके अनिकेत मैं भेजता हूँ उसका रिपोर्ट तुमको एंड अंकिता मैं तुमको अनिकेत का रिपोर्ट भेजता हूँ. ठीक है. कैन सी व्हाट मिस what you missed and what Aniket you missed. Okay, sir. Okay. 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 Darshan, anything on Maruti? No, sir. It's on the same Sami Hotels have sent you. Oh, sorry, Trishul has made on Sami. Okay, huh. Yeah, go ahead, Darshan. You can. Yeah, Another sure. guy, yeah. Share my screen. Give me a minute. Yep. Sorry, since I've joined in mobile, there's an issue with my ठीक है, laptop. fine. No Yeah. issues, no issues. Yeah. Like most of the part was covered by Ankita and Aniket. I'll just cover what they have missed. अच्छा now let's say वो लोग ने सब कवर किया ना तो मुझे तुम्हारा कंक्लूजन बताओ that Uh-huh. if you want to talk in let's say 1 minute क्या बताना है Yes. तुमको. क्या बताना क्या हुआ है Yeah. कॉन्फ्रेंस कॉल में हुआ क्या है. Yes. अभी नंबर्स नहीं चाहिए पैड कितना ग्रोथ है वो तो सब पता है. थियोरेटिकल क्या है विथ थोड़े बहुत इंडस्ट्री नंबर्स. ओके. Sure. Yeah. So if I have to conclude what exactly is happening, apart from their the the most important and unique thing I found was their acquisition-led strategy, which is the most unique because यहाँ पे उनके variable leases are permanent and stable. Why? Because Sami Hotel just puts around like just say very minimal 552 million 150 million per hotel and remaining will be funded by the real estate and these tip properties generate attractive EBITDA and rapid payback periods compared to developing a new greenfield project unlike other hotels. So this was one of the key unique business model I found. And the next thing is about the management future growth. They have it's mentioned that they will be able to reach around 30 billion in revenue by financial year 30 with same store growth of around 9 to 11%, and it's fully funded through existing cash flows and commitment investments. And the management also noted that revenue per key is upscaling in upscale assets and is expected to nearly double. That was covered by Aniket too. Then looking ahead, the management highlighted that in February and early March, the RevPAR, the ARR could go almost to 25 to 30,000 per day. Why? Because due to World Cup and also due to IPL. And apart from that, their office leasing activity is also growing at a rapid scale in majorly in Bangalore, Pune, and other metro cities region. And also the management expects a short-term margin impact due to 150 to 200 basis points for the next couple of quarters, with normalization beginning from quarter and financial year 27 due to base effect will play out. Then, as I mentioned about the acquisition-led strategy, this is one of the important, the unique thing which I think will help Sami and leverage their growth in the hotel industry. And these are the hotel brand portfolios across. Mostly, if I have to sum it up, upper scale has Hyatt and Hyatt Regency and Renaissance, and upper and mid scale mostly has around like 4 points Fairfield by Marriott, and mid scale has Holiday Inn Express hotels. And apart from that, these are the financials. So in total, they have around 490 rooms, and addition and renovation are expected at around 6,360 crores. Yes, sir, that's all.
Oh, great, great. I think this is good. Yep. अच्छा, ये जो तुम चार्ट्स डालते हो ना, ये जो स्क्रीन पे है, हाँ. दिस चार्ट्स, इफ पॉसिबल यू कैन राइट समथिंग अबाउट द चार्ट, कि क्या कर रहा है वो Okay. सैमी होटल जो एग्जिबिट वन है ना, यू कैन स्टार्ट राइटिंग कि वो, मतलब लेट्स से अ पैराग्राफ एंड देन चार्ट्स, अ पैराग्राफ एंड देन चार्ट्स, ऐसा एक दो लाइन अगर इफ इज पॉसिबल। बिकॉज यूजुअली व्हेन तुम्हारा क्या हो रहा है, रिपोर्ट अच्छा है बट वो ग्राफ सा रहा है ना, तो इट इज लाइक अनरिलेटेड, मतलब तुम किस बारे में ऐसा बीच में क्यों बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। हम्म. Okay, so समझ it गया. can, Sammy Hotels portfolio Q3 FY26 अभी मिड स्केल अप स्केल, तो तुम वहाँ पे लिख सकते हो मिड स्केल, दोनों का भी लगा, मिड स्केल अपवर्ड में रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, मिड स्केल इज द ARR इज अराउंड, लेट्स से जैसे लग रहा है 8,000 है एंड इसका 2,000 है, तो ऐसा ग्रोथ हो रहा है, यू कैन राइट दैट स्टार्टिंग, Understood. मतलब वो जो दोनों दोनों जो है, या फिर चलो ARR, सॉरी सैमी होटल्स पोर्टफोलियो, रूम्स बाय सेगमेंट एंड And occupancy. ऑक्यूपेंसी किधर लिखा है, हाँ ऑक्यूपेंसी, हाँ तो इसके बारे में तुम कुछ लिख सकते हो ना कि क्या हो रहा है ऑक्यूपेंसी में, रूम रेट में क्या हो रहा समझ गया सर. है, 75 अभी ये 71 का 76 क्यों है, ऐसा क्यों फर्क है दोनों में, या फिर हिस्टोरिकली द इट 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 कम्स एट 76% एंड मिड स्केल में तो उसका ARR कितना है, लिखा है तुमने, बट ठीक. एक एक पॉइंट में वो क्वार्टर में क्या हुआ है स्पेसिफिकली, ऐसा वो चीज के बारे में, मैं कि समझ गया सर, एक्सपांशन क्योंकि कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोगों को अभी मतलब ग्राफ देख के कॉम्प्रिहेंड करना पड़ रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट इजी इट विल बी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. नहीं मतलब एक दो लाइन ही ग्राफ देखा तो मैं समझ रहा, बट मेरा ऐसा कि ग्राफ वो देखना क्यों है, क्या मतलब क्या रेजेंबलेंस है पूरे रिपोर्ट में, वो ग्राफ डाला ही क्यों तुमने बीच में, ऐसा है, मतलब मुझे अंडरस्टूड. ऐसा समझ रहा है कि अच्छा लिखा है बट ना एट द एंड के ग्राफ्स, मैं क्या समझू इससे, ऐसा कि इफ आई एम लुकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि वो हम्म. ग्राफ्स में क्या है और ऐसा बीच में क्यों डाला है तुमने, तो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, तो तुमको चाहिए ना ग्राफ, तुम एंड में डाल सकते हो, ये सब है ना, यू कैन पुट इट एट ठीक द है. एंड, क्योंकि लिखना इज इंपॉर्टेंट है, जो तुमने ये थर्ड सेकंड जो सॉरी ये चार एग्जिबिट्स है ना, हाँ एक हाँ. तो तुम अगर रेवेन्यू की बात करो तो बीच में डालो रेवेन्यू के बारे में, तो ऑलवेज ठीक है. कीप्स राइटिंग चार्ट, राइटिंग चार्ट, ऐसा सब एक साथ मत डालो चार्ट, वो एक साथ ठीक है. कौन से चार्ट डालते, बिकॉज ना ये सब इंडस्ट्री डेटा है, ये सब ना कंपनी डेटा नहीं है, मतलब जैसे हम्म. ग्रोथ नहीं हुआ है, मतलब रेवेन्यू ग्रो नहीं हुआ है, इबिटा ग्रो नहीं है, वो सबको चार्ट तुम डाल सकते हो, जैसे मार्जिन ग्रोथ हुआ है, बट ये सब तुम्हारा हम्म. एक्चुअली इंडस्ट्री डेटा है, इसके बारे में पीपल विल लाइक टू नो कि हाँ ये क्या हो रहा है इसमें, ये अपर समझ गया. स्केल में कौन से रेस्टोरेंट्स है, कौन से होटल्स है अपर स्केल में, हम्म. ठीक है, ये रेवेन्यू मिक्स ऐसा क्यों है, क्या बढ़ा है 41%, जब तुम बोल रहे हो कि 41 मिक्स में क्या बढ़ा है, तो तुम रेवेन्यू मिक्स की जब बात कर ही रहे हो तो उधर ही वो चार्ट डाल दो, ऐसा ठीक. ठीक है कि सर, रेवेन्यू समझ मिक्स गया. क्यों हो रहा है, तो वो दो लाइन लिखा है उसके नीचे ही चार्ट डाल दो, तो दैट विल बी बेटर वन टू समझ रिलेट, गया सर. ठीक है, क्योंकि हम ना एक या. ह्यूमन माइंडसेट होता है कि अपन जब पढ़ते हैं तो हम्म. पढ़ने पे किसी का ध्यान नहीं होता, चार्ट पे ध्यान होता है, हम्म. बट सिर्फ तुम चार्ट डालोगे तो फिर ऐसा कि क्या है उस चार्ट के बारे में, ऐसा है, उसके ठीक बारे है में हम सर. देखते हैं ना, जैसे अब हम गाड़ी का फोटो डालते हैं तो गाड़ी के हाँ बारे में हाँ. ठीक है, गाड़ी अच्छी दिख रही है, बट फिर वो कौन सी गाड़ी होती देखते हैं ना हम, क्या लिखा है गाड़ी के बारे में, हम्म. हाँ, या फिर पढ़ते, वो ऐसे होता है, एक माइंडसेट होता है कि तुम कुछ तो लिखा होना चाहिए चार्ट के बारे में, ऐसा है, ठीक है सर. ओके, बाकी अच्छा बना यस. है, गुड, कैन यू या. कैन रिफ्रेम, तुमने जहां जहाँ पे वो ऑक्यूपेंसी की बात की है, जहां जहाँ पे तुमने रूम रेंज की बात की है, वहां पे हाँ. उसके नीचे तुम चार्ट डाल सकते हो, ठीक है सर, समझ ठीक है, गया. एंड प्रोबब्ली डोंट कीप इट ऑन द फर्स्ट पेज, सेकंड पेज से चार्ट ग्राफ चालू करना, ठीक. ठीक है, ठीक है सर. Also, ठीक एक है, important point I forgot to highlight, that most of the 30% of days in the last 9 months were operated around 90% occupancy, and 57% of the days were above 70% occupancy. ओ ओके, Yeah. 57% days were above 70% occupancy. Okay, across four. Great. Yeah. Okay. Okay, great. Great, great. Good Yes. one. Good one, Darshit. Yeah. Thank. Okay. So one more thing added in this, Ankita and Aniket, ये और जिस चीजें तुमने और एक मिसिंग थी, अभी इसमें भी, इसमें और कुछ ये लिखा था जो तुम्हारे इसमें नहीं था, फाइन, दिस इज और हाउ वी इन्होंने, ग्रो, सॉरी, या, इन्होंने और क्या किया कि लाइक सिंगापुर बेस्ड जो जीआईसी है, एसडब्ल्यूएफ हाँ, सिंगापुर बेस्ड, तो उनसे 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया था. 6,000 करोड़ इन्होंने तो डेट प्रीपे कर दिया था उसमें. So that's why their debt and EBITDA and mostly debt level looks very, flavored and artificially mannered. Although I don't know how will they grow ahead, but इनका ये एक outlook बहुत concerning thing है compared to other hotels. ओके, ओके, Yeah. ग्रेट, ग्रेट, गुड वन, गुड वन Yes. दर्शन,
stop. Yeah, okay. Kaustav, yes. Yeah, hi sir. Hi. So hi everyone. My news is about the e-commerce sector, specifically the quick commerce sector and the e-commerce sector together. So the quick commerce sector has a 47% share in online grocery in the e-commerce. So it has surpassed e-commerce sector in orders. So specifically talking about a company. So Tata Consumer, it derives it 18.5. So almost 19% of the revenue comes from e-commerce and quick commerce. And the quick commerce sales have doubled year on year, while modern trade contributes 14%. And for the other companies like HUL, ITC, Nestle, Dabur, Marico, so quick commerce has outperformed e-commerce and modern trade. So this data is taken from REITs. So those guys are telling that Kirana stores currently retain 91% share in grocery market, but by 2030 they are expecting the share to fall to 86%. And this will say that quick commerce will increase at a CAGR of 38% till 2030. And this could benefit key players like Swiggy, Instamart, Blinkit, and Zepto. That will be all. Thank you. Okay. Okay, nothing on it. ये स्विगी क्यों डाउन है यार? नीचे 6% स्विगी का रिजल्ट आया। कौस्तुभ, Yeah, sir. So they are कौन shifting their बोलेगा? model completely. कौन बोलेगा ये? Yeah. You have to see, Kaustuv, it is not only about talking, huh? You have to Mm-hmm. keep an eye on the stock market. You have to keep an eye what is going in the industry. न्यूज में क्या आ रहा है? It is not only कि वो न्यूज में क्या आ रहा है। तुम Yes, अगर sir. स्विगी ट्रैक कर रहे हो, स्विगी का आज रिजल्ट आया है, तो इसके लिए वो ट्रैकर रखा है ना हमने। वो व्हाई इज द ट्रैकर इम्पोर्टेंट? Market टू tracker, yes. अंडरस्टैंड कि हाँ, टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है, बिकॉज वॉट एवर वी आर डूइंग इट शुड रिलेट टू द स्टॉक प्राइस। इफ यू आर नॉट रिलेटिंग थिंग्स, प्रोबेबली ऐसे हो जाएगा कि तुम अभी भी पढ़ ही रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग एनी एक्सपीरियंस। Got एवरीथिंग it, शुड sir. लिंक टू द स्टॉक प्राइस। किसी के न्यूज आया है बट ना स्विगी डाउन है, ऐसा स्विगी का रिजल्ट आया है। टाटा कंज्यूमर्स के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। हाँ, Yeah, टाटा sir. कंज्यूमर्स डोंट डील विथ स्टॉल्स ओवर स्ट्रेटेजिक इश्यूज। बहुत कुछ आया है। फिर आईटीसी का भी आया है ना। इफ इट्स ऑल अंडर दैट एफएमसीजी पार्ट, तो सिर्फ न्यूज की, ई कॉमर्स के पार्ट, सॉरी, नॉट बी ओनली ई कॉमर्स न्यूज। तो ये सब चीजें तुमको लिंक करनी है उसमें। Got सर it. सर ये जो टीसीपीएल टाटा कंज्यूमर के कॉन कॉल में उनके सीईओ ने एक हाँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया था कि दे टोल्ड कि मोस्ट ऑफ देयर सेल्स एज कौस्तुभ मेंशन्ड ई कॉमर्स से डी टू सी से आता है, क्योंकि हम्म, नॉर्मल रिटेलर दे डोंट वांट टू ओन देयर प्रोडक्ट, क्योंकि वो बल्क में खरीदते हैं और लूज बेचता है, तो उनको मार्जिन वहां पे ज्यादा मिलते हैं। तो जो भी एफएमसीजी कंपनीज है, देयर मेन डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन लाइक कम्प्लीटली चेंज। अपार्ट फ्रॉम जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे बल्क में, दे कांट सेल, जो भी ओन पैकेज प्रोडक्ट्स बेचते, ई कॉमर्स एंड डी2सी आर द ओनली वे टू सेल। क्यूरियस, यस। तो D2C इज ग्रोइंग, तो वो लोग भी आई थिंक टाटा कंज्यूमर ने अलग से ब्रांडिंग किया है सब चीजों को। दे आर ऑल्सो सेलिंग इन द स्टार बाजार एंड मैंने उस दिन डीमार्ट गया था, तो डीमार्ट में भी मुझे दिखा है प्रोडक्ट्स। ऐसा है, टाटा Yes. कंज्यूमर्स के नहीं थे, बट वो ना दे आर नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया इज दे आर ब्रांडिंग द लूज प्रोडक्ट एज यू राइटली मेंशन। काजू, किशमिश, बादाम, ड्राई फ्रूट स्पेसिफिकली, दे आर नाउ ब्रांडिंग इट, जो इंडिया में आज तक हुआ नहीं था। मतलब ना, हम True. इफ यू गोना बाय ड्राई फ्रूट, हम एक लोकल शॉप में जाके ड्राई बाय करते हैं, कभी ब्रांड True, नहीं था sir. उसमें। हाँ, तो वो Mhm. करने लगे, तो दैट इज वाई वो लूज प्रोडक्ट उसी की बात कर रहे हैं वो लोग। बिकॉज टी लूज में नहीं आती, टी तो पैकेट ही Yeah. आती है, उसका मेजरली प्रोडक्ट टी है। फिर ऑर्गेनिक इंडिया, वो सब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, उसके D2C प्रोडक्ट्स है, वो सब उसके ऑनलाइन से ही बिक रहे हैं। ऐसा मतलब स्विगी पे भी तुम जाओ तो आई मैं स्पेसिफिकली वो मंगा के खाता हूँ ऑर्गेनिक इंडिया का, कि क्या है उसमें ऐसा। हर बार दिखता है क्या स्विगी, बट एवरी टाइम आई गो आई फाइंड समवन एल्स आल्सो, ए कॉम्पिटिटर है वहाँ पे, वन मोर कॉम्पिटिटर इन दैट। True. True, sir. तो ये The हो रहा है। dry, yeah, they're emphasizing very much on the dry fruit segments because margins are very high on that segment. वेरी सर नाइस, या। सर तो वो जो लूज, ड्राई फ्रूट्स हाँ सॉरी सॉरी, गो सर अहेड। आई एम ऑडिबल। या क्या करते हैं? सर जो ड्राई फ्रूट्स का पैक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज मार्केट हो रहा है, डेट इज बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम अमेजन। उसका सबसे पहले आया था बाय द ब्रांड नेम ऑफ वेदाका। अच्छा, उसके बाद देन कम्स द टीसीपीएल एंड अदर्स आर आल्सो कमिंग फ्रॉम देयर ओके प्रोडक्ट। ओके ओके। काफी स्मॉल है सेगमेंट वैसे वो अभी।
बट नहीं, ये जो बात करते हैं जो टी का जो है, पर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है वो, ये जैसे सर कि हम लोग। वैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है एंड इन ऑल ओवर स्कोप बहुत है, लेकिन अभी मार्केट साइज छोटा है एंड आई एम नॉट हाँ, अवेयर ऑफ मार्केट साइज काफी छोटा है, यस। दिस एंड स्टिल। इट्स पे एक ग्लोबल रिपोर्ट आया था फ्रॉम आई डोंट नो द नेम। तो उन्होंने कहा था अभी भी जो बिगेस्ट ग्लोबल जो कंपटीशन है इसका डेट्स कम फ्रॉम हमारा जो मार्केट है, ओल्ड मार्केट जो हाँ, मार्केट जो है। हाँ, काफी अनऑर्गेनाइज प्लेयर है यार। काफी कुछ हो रहा है उसमें, टाटा कंज्यूमर में मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली इज इट, सो आई एम हैविंग एन आई ऑन दैट कंपनी कि क्या हो रहा है वो कंपनी में। सॉरी दर्शन, तो वो मार्जिन का क्या बोल रहे थे, सॉरी अगेन, कैन यू कम अगेन, लूज प्रोडक्ट पे। टाटा कंज्यूमर्स। हाँ, टाटा कंज्यूमर पे। हाँ हाँ। तो जो भी हमारे जो मॉम एंड पॉप शोज होते हैं, रिटेल जो भी किराना हाँ, स्टोर्स, दे वोंट बाय टाटा प्रोडक्ट्स लाइक, क्योंकि एफएमसीजी में दूसरे प्रोडक्ट्स तो बाय कर लेंगे, लेकिन जो भी इनके ओन पैकेज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है वो लोग नहीं बाय करेंगे। वाई? बिकॉज एक तो वो लोग बल्क में होलसेल में लेके आते हैं, बिकॉज उनको डिस्काउंट मिलता है उस पे, एंड उस पे कुछ दे कैन प्ले ऑन द क्वालिटी ऑल्सो, अडल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ, एंड ऑल्सो उनके मार्जिन वहाँ पे ज्यादा होते हैं फॉर द किराना स्टोर्स। But that's why Tata Consumers is not able to crack the traditional distribution method. That's why they're focusing more on D2C and e-commerce, क्योंकि वहाँ पे people aren't buying loose, they can buy the packaged products, and वहाँ पे थोड़े customers भी थोड़े premium customers आते हैं, they can make a better choice. okay. So I can say, they are talking about increasing margins, मतलब वो मार्जिन पे फोकस कर रहे हैं rather than the quantity। Yes, ऐसा भी आ yes. सकता है ना, थॉट प्रोसेस आ सकता है कि उनको ट्रेडिशनल में, एंड है ना, इफ यू सी ट्रेडिशनल में ऐसा भी हो रहा है कि काफी न्यूज आता है कि ट्रेडिशनल मार्केट ग्रो नहीं हो रहा है बिकॉज सब लोग ऑनलाइन ही बाय कर रहे हैं, बेसिकली अर्बन मार्केट, नॉट द रूरल वन। तो ये भी तो चल ही रहा है इंडस्ट्री में, ट्रेडिशनल इज नॉट ग्रोइंग, किराना स्टोर्स में सब बंद कर रहे, कितने सारे किराना स्टोर बंद हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। इसमें जब ये लिखा, टाटा कंज्यूमर इज क्लियरली क्वाइट पॉजिटिव ऑन द प्रोटीन एज वेल एज, because in India it's very strong growth category with large vegetarian population, and मतलब वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, वैसे प्रोटीन प्रीमियम प्रोडक्ट पे ही फोकस कर रहे हैं। सो नाउ इफ यू आर ट्रैकिंग टाटा कंज्यूमर्स, फोकस ऑन इट्स मार्जिन, उसके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं क्या, उसके मार्जिन हम्म। इंप्रूव नहीं हो रहे, इसका मतलब ये सब झूठ बोल रहा है वो। ऐसा भी होता है कि बस बोल रहा है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, लिखा भी देखो प्रोटीन एक्स है, अडल्ट प्रोटीन है, ये सब, तो ये सब प्रॉब्लम हमको भी पता है, बहुत महंगे ब्रांड्स आते हैं। तो अगर ये सब चीजें, अगर से उसका मार्जिन नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब फिर टाटा इज डूइंग, टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, एंड विच इबिट मार्जिन, नॉट द इबिटा मार्जिन, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन विल बी अ ह्यूज पार्ट, एज इट इज सब एक्विजिशंस पे चल रहा है, इज ऑल ऑन एक्विजिशंस, खुद के प्रोडक्ट है नहीं इनके, एक्वायरिंग डी टू सी ब्रांड्स। और इसमें मोस्टली मुझे क्या लगता है होता है, अगर एक एफएमसीजी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर कुछ लॉन्च करती है तो अदर एफएमसीजी इमीडिएटली कॉपी करती है। कॉपी करना, आईटीसी का भी नाम है, आईटीसी एज इंटरेस्ट प्लान रेस प्रोटीन्स। तो इसमें हु या विंस अभी। ना, हाउ डज एफएमसीजी कंपनी वर्क, में हु विंस, द वन हु हैज द हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज विंस। हाँ हाँ। मतलब मारुति, why Maruti is the largest player in India, not because it has good car, do you agree मारुति की गाड़ी अच्छे होते हैं? नो। नहीं नहीं, टाटा की गाड़ी अच्छे होते हैं कंपैरेटिवली, बट why Maruti wins is because of their distribution, वो सर्विस अच्छे देते हैं, प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, चीप मिलते हैं कंपैरेटिवली, बट चीप तो टाटा के प्रोडक्ट्स भी होते हैं मतलब कंपैरेटिवली, बट द प्रॉब्लम व्हाई टाटा इज नॉट एबल टू क्रैक इट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। तो ये जो एफएमसीजी में वही जीतता है जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्योंकि पैसा सबके पास है, टाटा के पास भी पैसा है, एचयूएल के पास भी पैसा है, डाबर के पास भी पैसा है, इमामी के पास भी पैसा है। तो मेरा एक पर्सपेक्टिव था कि टाटा कंज्यूमर्स में उसका ऑलरेडी एक है, उसका एक, जैसे स्टार बाजार है, तो स्टार बाजार में उसी के प्रोडक्ट बिकते हैं, देन उसका बिग बास्केट भी है, तो इट कैन हैव एन अनएडेड कंपटीशन, मतलब अगर तुम बिग बास्केट यूज करते हो, प्रॉब्ली आईटीसी का प्रोडक्ट उस पर नहीं मिलेगा तुमको, ऐसा है, हो सकता है। तो ट्रू वो एक सर, है, इज व्हाट दैट इज ट्रू आई सर। थिंक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब अगर इंटरव्यू में कोई बात है तो ऐसा तुम बोल सकते हो कि सर इसके पास ये दो प्रोडक्ट है जो बाकी प्रोडक्ट मिले, स्टार बाजार में जाके तुमको एचयूएल के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, गारंटी, सर आईटीसी के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आईटीसी क्या कर रहा है, आईटीसी ट्रेडिशनल से बिक रहा है, बट ट्रेडिशनल में क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल में ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में कि सब लोग डी टू सी ब्रांड बाय कर रहे हैं,
हाँ तो स्विगी और जोमेटो, घुमा घूम फिर के स्विगी और जोमेटो पे आएगा, स्विगी जोमेटो जेप्टो पे। तो जेप्टो पे तो ट्रू। टाटा के भी प्रोडक्ट्स है। तो अभी हमको यही ध्यान देना है कि ये बिग बास्केट और स्टार स्टार बाजार क्यों ग्रोथ है। तो मैं, वो जब अभिषेक बात करता है ना, मैं उसको यही बोलता है कि यार स्टार बाजार में जाके देख के आओ तुम्हारे इधर कि कौन सा प्रोडक्ट नया लाया है। लोग आते हैं क्या स्टार बाजार में, या अभी भी लोग डीमार्ट ही प्रेफर करते हैं। तो मेरी वाइफ तो डीमार्ट ही प्रेफर करती है, पर फिर मैं उसको फोर्स करता हूँ जाओ टाटा स्टार बाजार में जाके लेके आता है। स्टार बाजार सिटी के अंदर इजीली अवेलेबल भी है ना सर, रेसिडेंशियल एरियाज में। डीमार्ट भी है ना मतलब वैसे तो, हाँ, ठीक है डिमांड, मतलब। हाँ, कंपेरेटिवली आई फेल्ट। स्टार बाजार हाँ मतलब ओवरऑल है सब भी मतलब। वही टाटा का प्रॉब्लम क्या है ना, अभी वो लोग ने सब अच्छा अच्छा किया है। वो स्टार मतलब आई सी स्टार बाजार एंड आई सी डी मार्ट बाजू बाजू में ही, हार्डली 1 किलोमीटर का फर्क होगा। मतलब मैं जाकर रहता हूँ 500 मीटर्स लेफ्ट पे डी मार्ट है, 500 मीटर्स राइट पे स्टार बाजार है। अभी जाएंगे कहाँ पे हम। हाँ तो व्हाट आई सी, स्टार बाजार में जाओ तो मेरे गाड़ी पार्क करने को मुझे जगह नहीं मिलता, ठीक है। डी डी मार्ट में जाओ तो गाड़ी पार्क करने को जगह है। तब आई एम प्रेफर्ड, आई विल प्रेफर डी डिमांड। मार्ट। ठीक है। और दूसरा एक बात है, टाटा स्टार बाजार में वो लोग ना सब्जी वब्जी भी बहुत, इफ यू गो देयर काफी ज्यादा ना स्पेस अनयूटिलाइज्ड है वहाँ पे, एंड लिमिटेड प्रोडक्ट्स है। वैसे डीमार्ट में जाओ तुमको वो टी शर्ट्स भी मिलते हैं, शर्ट्स भी मिलते हैं, घर के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, ऐसा भी मिलता है। राइट, इज नॉट ओनली ग्रोसरीज डीमार्ट में। क्योंकि डीमार्ट पे अभी तुम देखोगे ना, एवरी डीमार्ट है ना, तुमको पता है डीमार्ट का हमेशा इट इज नॉट इन अ बिल्डिंग। नोटिस किया होगा तो कोई डीमार्ट ऐसा बहुत रेयर है कि कोई बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग उसके अंदर है। दे ऑलरेडी हैव देयर लैंड एंड उस पे एक दो फ्लोर्स होते हैं। एग्री? एग्री एग्री सर। ध्यान ध्यान देखो या कभी सर भी करेक्ट। डीमार्ट का, है ना। ये एक फर्क है डीमार्ट में। तो डीमार्ट पे जाओ तो यू हैव 3 4 फ्लोर्स, 2 3 फ्लोर तो होते ही है। द वॉट एवर डीमार्ट आई हैव बीन, एक दो फ्लोर तो मिनिमम होते हैं। तो एक फ्लोर पे ऑब्वियसली यू गेट ऑल यूटेंसिल्स ऑफ योर होम, एंड एक फ्लोर पे यू गेट वो कपड़े भी मिल जाते हैं उसमें, जो स्टार बाजार में नहीं होता है। ये एक है दूसरा, विच आई डोंट लाइक अबाउट स्टार बाजार। मतलब मैं प्रेफर करूंगा टू गो स्टिल गो टू डिमार्ट, क्योंकि प्राइसिंग तो सेम ही है। तो ना तो क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट इज टाटा डूइंग डिफरेंट कि मैं डीमार्ट के पास ना जाऊँ। मेरा उसी पे ध्यान है पूरा कि टाटा ऐसा क्या कर रहा है जहाँ पे मैं डीमार्ट पे ना जाऊँ। मेरा तो पहला झगड़ा यही होता है कि मेरी गाड़ी पार्क करने को जगह नहीं, वाइफ को बोलता मैं तो उधर जाने वाला हूँ नहीं टाटा में। तो वो जब जाती है शी गोज बाय ऑटो, बट वो मुझे बुलाती है फिर, है ना, कम टू पिक अप। तो दिस आर ऑल स्मॉल थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, बहुत मैटर करता है सब चीजें। पर्सपेक्टिव है ना। मैं ट्रू खुद सर। नहीं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कंज्यूमर से पुलिस बात, मैं खुद जा नहीं रहा उधर, ऐसा है। ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, राइट फ्रॉम इन टू एग्जिट। राइट, बिकॉज ये सब हमारी मम्मियों को पूछो, मतलब मैं मम्मी से सीखा ये सब चीजें कि व्हेन शी यूज्ड टू गो, डीमार्ट क्यों प्रेफर कर रहे हैं, व्हाई नॉट, तभी बिग बाजार था। तो व्हाई डीमार्ट, व्हाई नॉट बिग बाजार। तो यही क्वेश्चन है मेरे। बिग बाजार में सब दुनिया भर की चीजें मिलती है जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक चीजें चाहिए। तभी डीमार्ट वाज जस्ट अ ग्रोसरी स्टोर, नाउ इट हैज नो एक्सपांडेड इनटू मच प्रोडक्ट। तो डीमार्ट ग्रो होना हो, टाटा कंज्यूमर्स ग्रो नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब यू हैव टू सी कि व्हाट वैल्यू इज टाटा कंज्यूमर्स गिविंग। तो ऐसा हो कि चलो यार प्रोटीन वेटीन ये सब ना डीमार्ट में नहीं मिलता है, तो अगर मुझे लेना होगा तो तुम प्रीमियम कस्टमर की बात कर तो आई विल गो टू स्टार बाजार, समथिंग सॉर्ट ऑफ, समझे। फिर तुम स्टार बाजार जाओगे तो ऑब्वियसली सीवीए लेने नहीं जाओगे, बाकी की चीजें लेंगे। तो दिस इज हाउ आई थिंक टाटा इज चेंजिंग द ओवरऑल एक्सपीरियंस। बट हाँ, जब तक आई एम मतलब आई एम बुलिश ऑन टाटा कंज्यूमर्स, बट स्टिल आई डोंट थिंक दैट ये मुझे सच में अच्छा लग रहा है। आई विल नॉट बाय अ स्टेक, और मैं ज्यादा पैसा डालूंगा नहीं इसमें। आई विल जस्ट से कि ठीक है, इन्वेस्टेड है जस्ट टू हैव अ लुक कि क्या हो रहा है। क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रैक करूंगा, इंडस्ट्री ट्रैक करूंगा, ये क्या एक्विजिशंस कर रहा है, उसके बैलेंस शीट ट्रैक करूंगा, कुछ चेंज हो रहा है क्या, मार्जिन पे ट्रैक। अभी ये सब बोल रहा है तो ऑब्वियसली मेरा ध्यान तो मार्जिन पे ही होगा। उसके कैपिटल फूड्स के बारे में भी उसने बोला ना, कैपिटल फूड्स विल ग्रो बाय 30%, दैट इज ऑल्सो प्रीमियम प्रोडक्ट। वो बोल रहा है, बट ऐसा हो रहा है क्या, दैट वी हैव टू सी। एंड ये जो स्टार बाजार है, दे आई थिंक दे ऑपरेट अंडर ट्रेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ट्रेंड के अंडर, बट नहीं उधर ना स्टार बाजार में सब प्रोडक्ट्स टाटा के बिकते हैं, ऐसा है कंज्यूमर्स के, है हाँ ट्रेंड के वो। अंदर, ऐसा है। हम्म। तो वो था मैं ट्रेंड में, आई एम नॉट ट्रैकिंग ट्रेंड, बट आई एम ट्रैकिंग कि अगर
मतलब स्टार बाजार में लोग जा रहे हैं, इसका मतलब उसके प्रोडक्ट यूज कर, टाटा कंपनी में उसके प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। तो टाटा इज नोन फॉर ऑल दिस थिंग्स, एक दूसरे को प्रोडक्ट बेचते रहते हैं एक दूसरे के। ओके। सर सर आई हैव अ क्वेश्चन। या ये बिजनेस मॉडल हम कैसे इवेल्युएट करें कि विच वन इज गुड? लाइक जो जूडियो है वो फोको पे ऑपरेट करता है, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, एंड डीमार्ट इज के अपने आउटलेट्स हैं। सो किसके लिए हाँ, कौन सा बेटर है, हमें कैसे इवेल्युएट करें उसको? सी रादर देन द बिजनेस मॉडल, मेरा पहला फोकस है प्रोडक्ट पे। ठीक है। अच्छा, इफ हम्म यू आर सेइंग कि ट्रेंड और डीमार्ट का प्रोडक्ट सेम है क्या? ऑलमोस्ट प्रोबेबली बट नहीं, प्रोबेबली नॉट। डीमार्ट की प्रोडक्ट अलग है। ट्रेंड ट्रेंड इज मेजरली इनटू फैशन ना, जूडियो और उसमें है ना वो। हाँ हाँ डीमार्ट थोड़ी उसमें स्पेसिफिकली, वो भी है उसमें बट इतना नहीं है उसमें डीमार्ट। ठीक। अच्छा, हाँ, अभी उसका पोर्शन कम है। अभी डीमार्ट का क्या है? डीमार्ट में जो खुद के ओन प्रॉपर्टीज है, बिकॉज ही हैज कैश। तो हम फाइनेंस में ये पढ़ते हैं ना, हम EBITDA देखेंगे ना। अभी डीमार्ट के पास कैश है, उसने खुद के ओन प्रॉपर्टीज लिए है, तो फिर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अगर डीमार्ट जैसा कुछ खोलना है तो इसलिए मैं तो रेंट पे लेके खुलूंगा ना। तो इट डजंट मीन आई एम नॉट अ गुड बिजनेसमैन। Okay, but तो जैसे, that strategy is helping them to expand fastly ना? सॉरी सॉरी। जूडियो जो स्ट्रेटजी है वो उनको हाँ, एक्सपेंड करने में मदद करेगा ना? करेक्ट 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 करेक्ट। कोई तो बोल रहा हूँ ना। अभी जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूँ, व्हाट इफ आई टेक अ फिजिकल क्लास? कैन आई से माय ग्रोथ विल बी स्टैग्नेंट? आई कैन ओनली टेक पीपल फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया। तुम तो आ नहीं सकते इफ यू आर नॉट फ्रॉम पुणे और मुंबई। Correct, करेक्ट। correct. And और also your प्रोडक्ट, cost also increased. हाँ, कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज, माय कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। सो अच्छा, ये सब ठीक है, आई चलो मैं कर भी दूँ, बट अगर मेरा प्रोडक्ट ही खराब है तो पीपल विल नॉट कम। वो तो फिर कहीं पे भी नहीं चलेगा। कहीं भी नहीं चलेगा, हाँ कहीं पे भी नहीं, बट ऑनलाइन फिर भी चल, हाँ वो तो कहीं भी चलेगा, बट वही हाँ, ट्रेंड की भी बात करते हो। ट्रेंड में क्या है? इंडस्ट्री जो है इज समथिंग डिफरेंट। दे आर ट्रैकिंग व्हाट? दे आर ट्रैकिंग एकदम मिड मास सेगमेंट क्राउड। करेक्ट। हम जो पेपर पढ़ रहे हैं लो इनकम उसमें ये ग्रुप पढ़ रहे टारगेट है। हैं हाँ, कि लोगों का इनकम बढ़ रहा है, हम प्रीमियमाइजेशन के पास जा रहे हैं। तो फिर उसमें ट्रेंड कर क्या रहा है? ऐसा है। तो आई फोकस ऑन द एस्पिरेशनल बाइंग, और मे बी ना कंज्यूमर एक्सपीरियंस। मेरे पास अगर पैसा है, प्रोबेबली आई वाई वुड आई गो इन अ ट्रेंड? तुम भी जाओगे क्या? 15 लाख सिटी से तुम्हारा, तुम जाओगे 100 रुपए का 200 रुपए का शर्ट पहनने को? नो सर, initially तो आई प्रोबेबली एम गोइंग, नॉट। बट whenever I re- receive more money, then I prefer west side or something else. तो वो आ रहा है ना, न्यूज़पेपर में आ ही रहा है बार बार कि इनकम बढ़ रहा है, इंडियन इनकम बढ़ रहा है ओवरऑल। Yeah. तो इसमें ट्रेंड व्हाट, कि मैं नहीं बोल रहा इट्स अ गुड, इट्स नॉट बैड बिजनेस, बट मुझे नहीं लग रहा है जहाँ पे इंडस्ट्री मूव हो रहा है वहां पे नहीं, क्योंकि ये चीज मारुति में भी हुआ था। मारुति बोल रहे हैं इंडिया इज अ पुअर कंट्री, इंडिया इज अ पुअर कंट्री, हम स्मॉल कार्स ही बनाएंगे, स्मॉल कार्स ही बनाएंगे। फिर पूरी दुनिया क्रेटा बाय कर रही है, पर वो मारुति सिर्फ वापस ऑल्टो ही पे फोकस कर रहा है। तो दैट इज द Hmm. पॉइंट। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि मारुति खराब है, मैं नहीं बोल रहा कि ऑल्टो का प्रोडक्ट खराब है। सॉरी, मैं प्रोडक्ट की नहीं, मैं गलती किया कि मेरा प्रोडक्ट खराब है। अब तुमने बोला बोला कि ऑनलाइन में चलेगा, ऑफलाइन में चलेगा, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, बट इंडस्ट्री को वो नहीं चाहिए। Correct. इंडस्ट्री इज मतलब समथिंग प्रीमियम। industry ऐसा है। wants but not major mass one. मास वन, हाँ। तो फोकस किस पे हुआ? तो इसके लिए वो इंडस्ट्री नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर यू टॉकिंग ऑन द इंडस्ट्री फ्रंट, कि इंडस्ट्री में होगी, इसके लिए पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जब बॉबी बता रहा था कि टीवीएस में ग्रोथ हो रहा है, तो वो थ्री व्हीलर प्रीमियम सेगमेंट में ग्रोथ हो रहा है, बट क्यों ग्रोथ हो रहा है तुमको पता होना चाहिए, ग्रोथ क्यों हो रहा है? इज दैट द रीजन कि प्रीमियमाइजेशन में ग्रोथ हो रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है इसके लिए प्रीमियम ग्रोथ हो रहा है? या फिर कभी कभी वन ऑफ भी होता है, वन ऑफ भी कभी कभी ग्रोथ होता है, तो वो तो नहीं होता ना। दैट इज नॉट, फिर सस्टेनेबल नहीं है वो। कि कभी कभी कोई नया Okay. प्रोडक्ट लॉन्च होता है, पता है अचानक से ग्रोथ हो जाता है उसमें, बस नया प्रोडक्ट होता है Mhm. इसके लिए, Yeah. फिर डिक्लाइन हो जाता है। ऐसा है। तो ये नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई द इंडस्ट्री नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड इकोनॉमी, साथ में इकोनॉमी भी है कि लोग कर क्या रहे हैं। तुम देखो, मैं जब भी Okay. बात करता हूँ ना, आई ट्राई But टू then we लिंक इट have विद। to see na कि that product is actually good or not. Like there is one product of Godrej that is a floor cleaner. So उसके वजह से जो बाकी HUL के जो फ्लोर क्लीनर्स थे उनकी डिमांड भी कम हो गई है। करेक्ट करेक्ट, वही करेंगे।
इनफैक्ट नो नो, मेरे वाइफ ने घर पे कुछ लाया था, वो बोली कि ये स्टार्टअप प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो, वो हम लाइजॉल लाते हैं ना, HUL का, उससे आता ना, ये एक बॉटल में कुछ था बड़ा, मतलब 1 लीटर का पानी बॉटल था कुछ। यू हैव टू पुट, डाइल्यूट करना था वो, एंड तुम्हारे वो यस सर, वो गोदरेज का है। तो कोई स्टार्टिंग, वो तो स्टार्टअप फाइव कंपनी है वो। हंड्रेड एम का बनता है एंड 55 रुपीज का MRP है। अच्छा हाँ, देखो, ऐसा कुछ था। और एक था कोई कंपनी, गोदरेज, आई रिमेम्बर, गोदरेज का नहीं था, वो कोई और कंपनी का था, वो अभी तक हम यूज कर रहे हैं, 1 साल हो गया, स्टिल यूजिंग दैट। Because वन कैप, कुछ वन कैप 200 ml का है, यू कैन क्रिएट 1 लीटर हार्पिक फ्रॉम दैट टाइप्स, हार्पिक टाइप्स या वो लाइजॉल टाइप्स। तो वाई वुड आई बाय लाइजॉल? यस, अच्छा, तो दैट इज व्हाई कॉस्ट आई एम। कॉस्टली भी एंड इफेक्ट प्रोडक्ट इज आल्सो गुड। प्रोडक्ट इज ऑल्सो गुड, पैसा कम है। मेरे पास कितने भी पैसे हो, मैं उसमें क्यों बर्बाद करूंगा? करेक्ट। यस बाथरूम सर। साफ करने के लिए वाई वुड आई स्पेंड, ना 2 4 500 रुपए का प्रोडक्ट क्यों लूं मैं, जब मुझे 50 रुपए में मिल रहा है? ठीक है, ऐसा तो ये होता है इसमें अभी वही। बट कपड़े में उल्टा है, कपड़े में ऐसा नहीं होगा। तुम 50 रुपए का प्रोडक्ट नहीं लोगे, तुम 500 का ही लोगे या 5,000 का ही लोगे इनफैक्ट। तो वो भी एक है ओके। कि तुम्हारा ह्यूमन पर्सपेक्टिव क्या है। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा है तो मैं जानबूझ के कोई 5,000 का प्रोडक्ट लूंगा, बट मेरा काम हो रहा है ना वो चीज से। हम्म। करेक्ट, ऐसा है। तो दिस ऑल थिंग्स मैटर्स अलॉट, मतलब मैंने जो मेरा एनालिसिस किया है ऐसे ही किया है। मतलब मैं जब भी इंटरव्यूज में जाने का, या प्रोबेबली इफ यू आर टॉकिंग विद अ क्लाइंट, तो आई यूज टू ब्रिंग इट टू अ ग्राउंड लेवल कि सर मैं ऐसा कर रहा हूँ, या मेरे फ्रेंड्स ऐसे कर रहे हैं, या मेरे फैमिली में ऐसा मैं देख रहा हूँ, एंड लिंक इट विद द न्यूज़पेपर, कि सर न्यूज़पेपर में भी देखो ऐसा आ रहा है, लोगों के पास पैसा पैसा। तो मैं आर्टिकल्स हमेशा कट करके रखने का मेरे पास। मेरे आज भी ओके। मेरे फोन में 1500 से ज्यादा स्क्रीनशॉट्स होंगे आर्टिकल के, आज भी है वो, तभी के, मैंने टू रीड इट। और फिर उसको मैं मार्क करके रखने का कि हाँ ये ऐसा आया था, क्योंकि अगर जब मुझे प्रेजेंट करने की बारी हो तो आई यूज टू गो टू थ्रू माई स्क्रीनशॉट्स। जो मैं तुमको पूछता हूँ, न्यूज़ लेटर लिखो, ताकि जब इंटरव्यू में जाओ तो पता चले क्या बोलना है। ओके। ऐसा। There is one more company, uh, Guinea Filaments. I identified it through IRCTC. It's a small cap company, but its revenue is grew multifold due to contracts continuously receiving through IRCTC and tailwind in the railway sector. Okay. नहीं, ठीक है, ये तो मतलब स्मॉल कैप आई अवॉइड। तुम ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, तुम करो रिसर्च, बट Yeah. किसी एक्सपीरियंस के सामने जब तक तुम्हारे पास डेटा पॉइंट नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, तो नॉट टू टॉक मच अबाउट इट। Yeah. क्योंकि जब तुम बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, तो तुमने क्या रिसर्च किया? डू यू नो आगे कितने Sir, का? yeah, I researched about the products also and the domestic sales, but not aware of the its exports के बारे में अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा। नहीं ठीक है, हम अभी सिर्फ यहाँ पे 100 को, जो प्रोडक्ट हम Yeah. B2C की बात करते हैं, नॉट गो इनटू दैट। तुम करो इन्वेस्ट, हाँ मैं नहीं सर, बोल रहा मेन तुम्हें। फोकस वहाँ पे है मेरा। Yeah. हाँ यार, But ओके, I travel through trains, so I get to know about this company. ग्रेट। यू कैन ऑल्सो राइट एन So, आर्टिकल ना, तुम अगर ऐसा लिखते ना, एक आर्टिकल लिख के लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो ना, वॉट एवर यू थिंक, नो हार्म okay, इन डूइंग दैट। अगर okay, तुमको कुछ अलग दिखता है, कैन डू इट एंड कैन टैग मी कि सर देखो पढ़ो, एक मेरा, मैंने ऐसे आर्टिकल लिखा है। ठीक है सर। ओके, ठीक है, ऐसा तुम कर ही सकते हो ना। अदर्स ऑल्सो आई कैन डू दैट। तुमको लगता है कि इसके अलावा कोई स्टॉक है जो बढ़ रहा है, एंड राइट अ बेसिक आर्टिकल ऑन दैट, हार्म इन डूइंग दैट। Sir, is there any specific format of something? नहीं, वही बोला ना कि हैव अ पैराग्राफ, पैराग्राफ हेडिंग, पैराग्राफ, वही जैसे न्यूज़ लेटर लिखते हैं ना, वैसे ही पैराग्राफ, 3 लाइन से ऊपर ज्यादा नहीं लिखना है। पैराग्राफ पैराग्राफ करके लिखो, सेल्स के बारे में लिखो, इंडस्ट्री के बारे में लिखो, कंपनी के बारे में लिखो, फाइनेंशियल्स के बारे में लिखो। कराउजल Okay, बना सकते हैं, यू कैन मेक अ कराउजल ऑफ दैट। बट क्वेश्चन okay, आता है ना कि वेन एवर यू राइट समथिंग, इट शुड हैव एन इंडस्ट्री फोकस, नॉट बॉटम अप अप्रोच, कभी नहीं होना चाहिए। टू ऑलवेज बी अ टॉप डाउन अप्रोच, कि सर इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, इसके लिए मुझे ये स्टॉक अच्छा लगा। वरना फाइनेंशियल okay, बेसिस पे दिस इज रॉन्ग एनालिसिस। मतलब ये फाइनेंस में सिखाया गलत जाता है कि हमको फाइनेंशियल देखना होता है। वो कब देखना होता है? जब इंडस्ट्री ग्रो हो। वरना फाइनेंशियल देख के एसेट्स तो कुछ समझने वाला है नहीं तुमको।
क्योंकि सबको ये पता है, सबका एनालिसिस सेम ही होगा। मतलब आज तुम एआई को भी दो कि मुझे स्टेटमेंट एनालिसिस करके दो, तो वो तो दे ही देगा ना। या में क्या बड़ी बात है? पर इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे करेगा कि वो आरओई जो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, मार्जिन जो एक्सपांड हुए, इज इट सस्टेनेबल, या अभी एक वन ऑफ हुए हैं? वो सर, एक वो में तो फिर हम उसके बाद इंडस्ट्री एनालाइज करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, टाटा कंज्यूमर ने एक्विजिशन किया है, इट्स अ गुड एक्विजिशन, ठीक है। तुम ये बोलो कि एआई को दो, तो वो तुमको अच्छे से न्यूज़लेटर बना के दे देगा इसके बारे में। पर आगे क्या? मैं बोल रहा हूँ स्टार बाजार में लोग जा ही नहीं रहे, ये एआई को थोड़ी पता है कि स्टार बाजार में लोग नहीं जा रहे। गॉट इट? Okay. या मीर? सर वो मॉडल का एक बार आप मेरे को बताना ना, क्योंकि मुझे कल डेडलाइन है कल के लिए, इसके लिए। ओके, ओके गाइस, विल स्टॉप हियर। सर मेरा भी कंपनी प्रोफाइल भेजा था वो। हाँ, मैं कल देखा, मैंने वो है टास्क पे, कल बता देना, कल क्लास में आ रहे हो ना, ओके ठीक है डिस्कस सर। करें। ओके, सब Sir, होंगे ना बाकी? hello. हेलो, या या Yeah, सर sir, sir, सॉरी। sir, can I post the quarter three update of Maruti on LinkedIn? हाँ, यस यस यस, यू कैन थोड़ा Okay, पोस्ट okay, में sir. लिखो भी, मे बी 3 पैराग्राफ ऐसा कुछ लिखो स्पेसिफिक, एंड देन पोस्ट योर रिपोर्ट, Okay, okay, प्रॉब्ली sir. पोस्ट इन Sure. कराउजल वे। Yeah. ठीक है, अच्छा लिखो, एंड टैग करना, ताकि सर आई कैन ऑल्सो रीशेयर, और मैं लाइक करूँ तो बाकी लोग को भी Yes, दिखे। yes, sir, sure. Thank you. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। मीर, तुम कॉल पे रहो, बाकी अदर्स कैन लीव। यस सर। क्या किया मीर तुमने इसमें? सर इसमें जो है डीसीएफ का तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पूरा मेरा सिर्फ जो है ना सर, ये सेकेंड ईयर पता नहीं क्यों नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, इनका वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है। फोकस, एक मीर, फॉर्मेट कौन करेगा ये? ऐसा ऐसा बेचते हो तुम? हाँ हाँ सर, वो मैं बस वही रह गया, मैं कर दूंगा वो भी। मेरे को सर ये पहले सेकेंड ईयर में जो 2027 है ना सर, उसमें वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उसका मैं क्या करूँ सर, क्योंकि उसकी वजह से पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव हो रहा है। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? ये इधर 16, ये इस ये भी तो फोरकास्टेड ही होगा ना। मेरे यहाँ पे लिखना हाँ होता है FE 26, हाँ हाँ। वो लिख दे, लो समझेगा कैसे फोरकास्टेड कौन सा ईयर है? सर इनका जो है ना समझे एक नहीं? बहुत ही अजीब ट्रेंड दिखा मेरे को, कि इनका वर्किंग कैपिटल का जो डेज है ना वो कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है। कॉन्फ्रेंस है कैसे, कॉन्फ्रेंस कॉल? नहीं सर, वो तो अभी तक नहीं, ये मॉडल ही तैयार कर रहा था, कल मैंने ये यही रेडी किया। और एआई को अब जस्ट पूछो आज कि ये इसके इसके ये डीएस क्यों इम्प्रूव है। मेरे कितना गंदा प्रेजेंटेशन है, ये समझेगा ही नहीं मेरे को रिसर्च क्या करना है। वो पहले देख के तुम भले कितना भी अच्छा मॉडल क्यों ना बना लो, इतना प्रेजेंटेशन खराब करोगे तो कोई देखेगा ही नहीं तुम्हारा मॉडल। तुम कितना भी फिर बोलो कि सर ये बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है, तो वहां से तुम्हारा इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाता है। क्यों है ऐसा? मैंने बोला था जगह छोड़ना नहीं है, डैश करना है सब जगह। यहाँ पे अदर फाइनेंस क्यों, ऐसा क्यों नहीं है सब? नहीं 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 सर, कैसे समझेगा मुझे वो है, किसका है वो? वो रेशियोज के कितना लिए कितना बनाया है। फर्क है? फिर ये ट्रेड पेबल्स दो दो ऐड करो ना इसको, करके ऐसा बताओ ना कि ये दोनों ऐड है, ट्रेड पेबल्स है, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी अलग अलग है, तो ना सब टोटल कैसे कर रहे हो? फिर इसका इन्होंने लिया कैसे अभी? किधर है इसका अजम्पशंस, किधर है assumptions, किधर है इसके? अच्छा, तूने दोनों ऐड करके लिए, मैंने बोला था ना अलग अलग लेना, तो दोनों ऐड करके लिए हैं, बैलेंस शीट में डाले, फिर ये दोनों ऐड करके वो कैसे डाले तुमने बैलेंस सर शीट वो में? एक वो छोटा वाला था, उसको जीरो कर दिया, फिर दूसरे को उसी नंबर पे रखा, क्यों वो ऐसा? 100 ही था, एक 100 था और एक 1900 ऐसा था, मतलब बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, तो उसको क्यों जीरो ही ऐसा? रख दिया। बट क्यों ऐसा वो पूछेगा ना, जीरो कैसे हो गया? मैं तो वही देखा पहले कि ये जीरो कैसे हो गया। बोला तुम दोनों अलग अलग करो। ठीक है ऐसा सर, इसको जीरो कर करते देता हैं हूँ। इसका मतलब
इम्पोर्ट रीजन देना है जीरो क्यों हुआ इसका। ये दोनों अलग अलग करो ना पेबल्स। यस सर। सर रिसेबल अभी हाँ 30 सर क्यों किया तुमने रिसेबल डेज। सर ये मैं यही पूछ रहा था, ये इसका ट्रेंड देखे तो ये कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है, तो सर इसको अपन ऐसा तो अज्यूम नहीं कर नहीं सकते नहीं, ना कि ये 38। इतना ही रहेगा, डोंट अज्यूम इट टू बी चेंज्ड। ओके तुम सर। कुछ भी असम्पशन चेंज करोगे तो क्वेश्चन पूछेगा कम क्यों हुआ, क्या आंसर है तुम्हारे पास। यहाँ पे क्या हुआ, ये वन ऑफ हुआ था कि इन्वेंट्री डेज, कौन सा इंडस्ट्री है ये। सर ये स्टव क्राफ्ट, वो कुकर और वो सब बनाता है। तो देखो ये इंडस्ट्री में क्या हुआ था ये साल, सब बाकी बाकी सिर्फ स्क्रीन पे जाकर देखना इंडस्ट्री सबका इन्वेंट्री डेज इतना बढ़ गया था क्या। हाँ सर। ये अभी ऐसा ऐसा अचानक से इंक्रीज क्यों हो जाए, तुम्हारा जो है वही रखो ना, क्यों चेंज कर रहे हो अननेसेसरीली। इसमें बोला था ना, इसमें फोकस नहीं करना है तुमको, कीप इट सेम, कि तुम्हारे पास रीजन नहीं है फोकस करने के। यस सर। और यहाँ पे तुम बोल सकते हो सर वन ऑफ था तो ये 130 लिया, ठीक है, ये वन ऑफ था तो 130 के आसपास, बट पता क्यों वन ऑफ था इतना, ये 139, ये एआई को पूछो कि क्या हुआ, ये इतने इन्वेंटरी डेज क्यों बढ़े इतने ज्यादा, क्या रीजन था इसका। यस सर। ये तुमने कुछ गलत कैलकुलेट किया है, सभी हो सकता है कि तुमने कुछ गलत कैलकुलेट किया है। तो देखो यहाँ से ही इतना इतना क्यों बढ़ रहा है इन्वेंटरी, इंटू टू क्या किया तुमने, सर क्योंकि टू टू एवरेज है। लिया है ना, एवरेज लिया है ना सर। एवरेज क्यों लिया है यहाँ पे। सर इन्वेंट्री टर्नओवर डेज जो है वो दो अच्छा का इसका एवरेज एवरेज करके है, होता है ना। हाँ तो इसके लिए पिछले का देखो और अभी का एवरेज करके ऐसे करके लिया है कि आंसर 130 आना चाहिए। डिवाइड बाय 365 इंटू क्या किया है एम। सर ये फॉर्मूला को वो रिवर्स करके किया है। ये इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना तुमको, तुम खुद इसको प्रेजेंट करोगे ना, मैं तो ये देखोगे इसने क्या किया है, तो बेसिक तुम कर ही सकते हो ना। मैंने क्या बोला था, 1800 तुमने बेचते हो, ठीक है, कितने टाइम में, एक साल में 49, मतलब 49 का सेल्स करते हो तुम, करेक्ट, कितने दिन में, यस 35 डेज में। वो तुमने क्या किया है ये। मैंने जो किया है ना उसमें पिछले वाला भी लिया है, क्योंकि सर एवरेज अपन रिसीवेबल लेते हैं ना इसके लिए। ठीक है, मतलब जरूरत नहीं होती वो एवरेज रिसीवेबल्स की, ठीक है। फिर तो सर ये पिछले वाले फॉर्मूलास भी चेंज कर लेता हूँ। वो नहीं सर, क्योंकि ये जो हमने रिसीवेबल डेज को कैलकुलेट किया है, हाँ तो वो एवरेज हाँ करके ही हाँ, कैलकुलेट किया है ना इसके लिए। तो ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट सी तुमको ये इतना प्रिसाइज नहीं करना होता, तुमको अप्रोक्सीमेट नंबर देना होता है, फ्यूचर फोकसिंग है अप्रोक्सीमेट। ये 35 एग्जैक्टली थोड़ी होगा, ये 35 ज्यादा ही होगा। यस सर। राउंड ऑफ किया तुमने, राउंड ऑफ नहीं किया तुमने, राउंड क्यों नहीं किया है, ऐसा होता है, ऐसा बताओगे 35 38.5 डेज को राउंड करना है ना, यस सर। फिर करो इसको राउंड, कितना हुआ तुम्हारा कैश फ्लो, हो गया पॉजिटिव। अननेसेसरी चीजें नहीं चेंज करनी है वो खुद, अभी यहाँ पे जीरो है, जीरो नहीं डालना है ना, सब ऐसा टू डू दिस। मेरी ये अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन नहीं होगा ना, मेरे अननेसेसरी रिजेक्ट हो जाओगे इंटरव्यू में, अननेसेसरी आते हुए भी। तुमको मैंने कितने बार बोला है, तुम्हारा, तुमको मैं जज तुम्हारे रिसर्च पे करने वाला हूं नहीं, तुम कैसे प्रेजेंट करते थे उस पे क्योंकि तुम्हारा रिसर्च गलत ही होने वाला है, तुम कैसे करते हो उस पे फोकस होगा। मतलब तुमने आज ये मॉडल गलत भी बनाया है ना, आई एम ओके कि चलो तुमने गलत बनाया ठीक है, बट प्रेजेंट तो बराबर किया है, क्योंकि गलती चीज रेक्टिफाई हो सकती है, ये रेक्टिफाई हो सकता है क्या। यस सर मैं तुमको चेंजेस क्या पता करता हूँ। डीसीएफ करके वैल्यू बराबर है कि नहीं है, तो विल आई लुक योर डीसीएफ,
मैं ये देखूंगा तुमने प्रेजेंट कैसे किया है कोई चीज, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। अगर मुझे तुम्हारे साथ काम करना है तो मुझे पता होना चाहिए तुम काम कैसे करते हो और तुम्हारा यस। थॉट प्रोसेस क्या है। इंटरव्यू में यही जानते हो लोग, इंटरव्यू में ये नहीं जानते कि तुमने कितना रिसर्च किया है, कितना डीप रह के रिसर्च किया है। वो तो तुम रोज करते हो, उस पर पता चल जाएगा रोज तुम क्या कर रहे हो। तुमने जो रिसर्च का थॉट प्रोसेस क्या है तुम्हारा, अभी दिस हैज नथिंग टू डू। इतना डाउन साइड आया तो सर एफसीएफ यूज नहीं होता, मैंने ऐसे करके रखा है एफसीएफ, इसमें एबी बाई बेटा यूज होता है। फिर ये तुमने किया कैसे, कितना कितना खराब रखा है तुमने। और 2 साल, थर्ड साल का क्यों नहीं किया ये, थर्ड का क्यों नहीं है डी शेफ। सर उसका 3 ही साल का बोला था ना, तो हाँ तो दो थर्ड साल हजार का भी तो होगा अट्ठाईस ना टर्मिनल वैल्यू, वो किधर है। सर टर्मिनल वैल्यू 2027 में, टर्मिनल तो इधर ही 2028 आएगा, में। थर्ड साल के बाद होता है ना टर्मिनल, तो इधर आता है टर्मिनल वैल्यू। हम क्या करते हैं, 5 साल के बाद होता है ना वो तो। हाँ सर। इसके बाद फॉर्म ये होता है ना, इसके बाद वो कांस्टेंट होता है। यस सर। यहाँ पे आएगा नंबर सब। फिर सर वो एक बार हार्ड रिलेटिव कोड किया, वैल्यूएशन देखना ना, इधर किया है। एकदम लास्ट में सर। मतलब चालू हमेशा ऐसा होता है, एफसीएफ से चालू होता है हमारा, हाँ सर। एफसीएफ विथ रिलेटिव वैल्यूएशन फाइल्स। इसमें सर पीयर एनालिसिस, मतलब पीयर्स का क्या है वो सब डालूं क्या अलग से? हाँ 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 यस। वो नीचे नीचे अलग से बनाऊं ना, कि जैसे कि हॉकिंस से या फिर और कोई ये कंपनी तुमने है क्या तो किया है, उसका। एक सेकंड। रिलेटिव वैल्यूएशन 1 ईयर 2 ईयर फॉरवर्ड ही होता है, तो 27 तक ही होता है, ये क्या किया तुमने। ये कहाँ से आप सर, तो मुझे क्या किया तुमने। पहली बात तो 28 का आएगा नहीं रिलेटिव वैल्यूएशन, 27 पे होता है, ये 26 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये फोरकास्टेड ईपीएस है बराबर, 27 का यस। फोरकास्टेड ईपीएस है। ये कहाँ से आया पी मल्टीपल, ये कैसे आया पी मल्टीपल तुमको। ये प्राइस उतना का उतना ही रखा है। अच्छा प्राइस, आज का प्राइस है क्या। हाँ सर। ओके हाँ, तो ये फॉरवर्ड, ये पी मल्टीपल फॉरवर्ड पी हो गया है। 1 ईयर फॉरवर्ड। और हिस्टोरिक पी का अभी ये हिस्टोरिक नहीं है, हिस्टोरिक ये अलग हो जाएगा। ये 1 ईयर फॉरवर्ड का ही बात करते हैं, 1 ईयर और 2 ईयर फॉरवर्ड पी। टारगेट प्राइस करंट के लिए थोड़ी आ जाएगा, 25 तो खत्म हो गया ना। यस सर। तो वो मेरे को याद ही नहीं रहा कि 25 खत्म हो गया वो। ऐसे ही करो, इसके लिए प्रॉब्लम होता है इंटरव्यूज में अननेसेसरी। पहले तो मेरे मैं देखता ही नहीं, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होता ना, मैं देखता ही नहीं तुम्हारा फाइल। खुद क्या करे वो भी नहीं समझेगा तुमको, खुद किया क्या है तुमने, ऐसा इतना गंदा प्रेजेंटेशन करके रखा है। ये कहा से हिस्टोरिकल मीडियन, अच्छा ओके 50 48। हार्ड कोड किया है तो रेड कौन करेगा, मीर कैसे समझेगा कि हार्ड कोड किया है वो नंबर्स। सर आप है ना कंट्रोल जी करके कर सकते हो तो फट से मिल जाता है। क्या। हाँ वो सबको कंट्रोल सिलेक्ट जी करके करके। कंट्रोल जी करके कॉन्स्टेंट्स मिल जाते हैं तो फट से हो जाता है, कौन। स्पेशल पे जाके कॉन्स्टेंट्स। हाँ नहीं वो नहीं, मुझे नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर देख रहा हूँ एज एन एनालिस्ट अच्छा नहीं। तो वो मुझे कैसे समझेगा नंबर में, ये नंबर कहाँ से आया। अभी ये कम, अभी कितने पे ट्रेड हो रहा है ये, करंट 35 पे। टीटीएम 55 के आसपास है, अच्छा। ये 48 हिस्टोरिकल मीडियन था ये कंपनी। डाउन ट्रेंड से 40% लॉस दिया है इस साल इसने। कंपनी का नाम क्या है। स्टाव क्राफ्ट।
पी तो लेना ही नहीं है, मतलब ईवी बाई बिट लेना है, पी तो कुछ काम का नहीं है। सो वो भी 19 के 19x, आसपास। 19 का, हाँ तो ठीक है ना, मतलब आसपास ही है ना। इसमें क्या है तुम्हारा, पी तो इसमें चलेगा ही नहीं बिकॉज तुमने बोला डेट कंपनी है। सर ई डेट बाई भी इन बिल्डा लोग से का जो है अपसाइड ना कितना शॉर्ट है? टर्म बोरोइंग से बढ़ता जा रहा है, तो इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग से लेना पड़ेगा। इनका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है इसके लिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो ठीक है, शॉर्ट टर्म और बोरोइंग्स लीज तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट हो गया। ठीक है, ईवी बाई बिल्डा, मार्केट कैप, और लीज लायबिलिटी भी बहुत बड़ा नंबर है, और सप्लायर क्रेडिट भी बहुत बड़ा नंबर है। लीज लाइबिलिटी बहुत बड़ा नंबर है, और सप्लायर क्रेडिट भी है, तो वो सब कुछ भी लिया है मैंने फिर। ये सब इधर क्यों है? 27 में आना चाहिए ना सब चीजें, यहाँ पे आनी चाहिए ना, ये सब क्या है इधर? हिस्टोरिकल बिड्डा 19, फोरकास्टेड ये क्या नंबर है? बिड्डा कौन सा ईयर का है ये? ओके, ये इसी 25 का साल का है बिड्डा सर। क्यों लिया? फोरकास्टेड बिड्डा ये है। आप करते हो मेर, लेवल 2 समझो कि नहीं, लेवल 2 क्लियर हो तुम, पास हो गए, रट्टा मार के पास हो गए हो। हाँ, बस यहाँ पे भी डाला नहीं, फिर समझो कौन से साल का है, बताओ ये कौन से साल का नंबर है? फ्रीज करना रह गया सर। सब रह गया तो किया गया तुमने फिर अभी तक? ऐसा कोई करता नहीं है मीर, कोई क्लासेस में? सर आज ही पूरा जल्दी जल्दी में ख़त्म किया ना, इसके लिए थोड़ा। जल्द तो फॉर्मेट जल्दी जल्दी कितना, 1 घंटे में करो? फॉर्मेट क्यों खराब है तुम्हारा? मैं आधे घंटे में कर सकता हूँ ये सब चीजें विद फॉर्मेट। दिमाग तो लगाया है नहीं तुमने, वैसे भी इसमें रिसर्च क्या किया है तुमने? फटाफट फटाफट क्या होता है? रीजंस नहीं देना होता है कि फटाफट किया है। यस सर, मैं कर रहा हूँ बराबर अच्छा करो, या अच्छा। फिर करो ही मत, फिर नहीं मत करो ही मत फिर। ऐसा फटाफट करना है तो फेल ही होना है तो फिर क्या कर रहे हो इतना सुबह से? क्या कर रहे हो? 6 घंटा हो गया, 4 बजे दिन चालू होता है एमबीएस वालों का। 8 घंटा हो गया, 8 घंटे में पूरा मैं रिसर्च रिपोर्ट बना के रेडी करूँ मैं? कितने बजे उठते हो सुबह? 7 बजे उठता हूँ सर। 8 बजे। हाँ, किया तुमने ये एबिट का। ये ईवी बाई बिल्डा क्या है? ये ईवी बाई बिल्डा क्या है? सर वो जो ईवी है ना, वो है जो कि अभी मतलब ये होना चाहिए उसका, ऐसा है। जस्टिफाइड वाला है, जो नीचे जो किया है वो। ये बिल्डा है। मार्केट क्या डालना है? फोरकास्टर मार्केट। कैश नेगेटिव क्यों है? वही सर, मैंने कहा था कैश ना आपको, नेगेटिव क्यों है? वर्किंग कैपिटल में सारा पैसा फंस रहा है। तो चेंज करो ना, कोई assumption चेंज करो। नेगेटिव कैसे आएगा? नेगेटिव कैश का क्या मीनिंग होता है? वो जब सर फंस रहा है तो स्टार्टिंग से ही assumption ऑपरेशन। कैपेक्स कम करो। कैपेक्स कैसे करोगे? अगर फंस रहा है पैसा, तो पैसा है तुम्हारे पास कैपेक्स करने को, या फिर लोन लेना पड़ेगा फिर तुमको? क्या लोन है तो लोन हाँ, बढ़ाओ। लोन बढ़ा देता हूँ सर। लोन ही, कैपेक्स कम करो, लोन क्या बढ़ाओगे? उनको थोड़ी पता है लोन ले रहे हैं नहीं ले रहे वो लोग। कोई पता नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो पॉजिटिव ही है। फिर फाइनेंसिंग तो रीपे कर रहे हैं तो इतना कम कैसे हुआ? लास्ट ईयर 1200 था, इस साल 800 कैसे हो गया?
वो छोटी छोटी आइटम्स है ना सर जो कैश फ्लो पॉजिटिव करेंगे डेप्रिसिएशन वो। इतना कम कैसे हो गया? 700 से 600, 200 कैसे हो गया? हाँ, अमोर्टाइजेशन का स्केड्यूल कहाँ पे? 700 का डेप्रिसिएशन इतना कम कैसे हो गया? राइट ऑफ यूज एसेट्स का कहाँ पे? डेप्रिसिएशन उसका उसका ये किधर है शेड्यूल? बनाया ना उस वीडियो में, सबके शेड्यूल है ना? यस यस सर। तो फिर उसका किधर है? वर्किंग कैपिटल कुछ भी रहा, कौन से वर्किंग कैपिटल में पैसा फंस रहा है उनका? वो वीडियो ना देखो, ईवी रिलेटिव वैल्यूएशन का मैंने कैसे किया है वो, क्विकली तुमको समझ में आएगा। सिर्फ 27 का ही करना है तुमको, और किसी का नहीं करना है। रिलेटिव वैल्यूएशन में बाकी के भी पीएर्स का भी तुमको एनालिसिस करके रखना है, बाकी के पीएर्स कितने हैं। यानी मैडम ये ढूंढना होता है हमको 27 का, 27 में हिस्टोरिकल नंबर नहीं डालने होते। तो क्या आएगा? EBITDA 1200 करोड़ है, इंटू 19, ये तुम्हारा आया ईवी। ईवी में से डेट माइनस होगा। ये कैश हिस्टोरिकल नहीं होता है, कैश हिस्टोरिकल कैश होता है ना, अभी खरीद रहे हो ना कंपनी को। हाँ लेवल 2 पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मेरे ये भूल गए जो पढ़ा था लेवल 2 में। और मत बनाओ मॉडल, और रुको इंटरव्यू के लिए कि बस इंटरव्यू आएगा उस दिन मॉडल बनाओगे। क्यों मॉडल्स रेडी नहीं है तुम्हारे? कितने मॉडल बनाए तुमने अभी होटल इंडस्ट्री और इस पे? बहुत टाइम पहले बनाए थे, 4-5 मॉडल्स बनाए थे। हाँ, रिपोर्ट तो नहीं लिखा था तभी तो सिर्फ मॉडल बनाया था, है ना? हाँ सर। तो कैसा होगा तुम्हारा क्लियर इंटरव्यू? ठीक है। फोरकास्टेड ईवी 25 में क्यों लिखा है, 25 के रो में? ये देखो मैंने वो किया था ईवी बाई बेटा, कैसे किया वो देख लेना वीडियो में एक बार। 1x 1.5 स्पीड पे देख लेना, रिलेटिव वैल्यूएशन वाला कैसे किया है। यस ठीक है, फॉर्मेट बराबर करना और पहले। यस सर। सर इसमें इंडस्ट्री वगैरह में क्या लिखूँ सर? रिपोर्ट जैसे मेरे को 8-10 पेज का बनाना है, तो फर्स्ट 2 पेज तो जो है कंपनी क्या करती है और उसके प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है वो लिखने का है। फिर इंडस्ट्री बनाने, इंडस्ट्री में क्या है और उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, उसके ऊपर 2 पेज लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखूँ सर? इंडस्ट्री, इकोनॉमी, लोग ले क्यों रहे, सेक्टर क्यों ग्रो होगा? राइट। तो यूजुअली इकोनॉमी आता है, इंडस्ट्री आता है, फिर कंपनी आता है। ठीक है, तुम कंपनी, इंडस्ट्री, इकोनॉमी। कंपनी ये कर रही है, इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा है, और इकोनॉमी में क्या चल रहा है? यस। लोग वो सेगमेंट क्यों बाय कर रहे हैं, या प्रोडक्ट क्यों बाय कर रहे हैं? कंप्यूटर के बारे में भी लिखना होता है थोड़ा। और सर ये इसका ये अलग जो कैसे है, सौ का वैल्यूएशन बाकी जो के है अलग उसके कैसे है? बारे में कैसे बताऊँ? कुछ नहीं, वैल्यूएशन यही जो तुमने किया है। और नहीं नहीं, देखो मैं मतलब वो देख रहा कौन हूँ से वाले रिलेटिव पार्ट में वैल्यूएशन। बताऊँ? ये कंपनी वाले पार्ट में ये बताऊँ या फिर लास्ट में अलग से वैल्यूएशन करके बताऊँ? ये कंपनी वाले पार्ट में, कंपनी वाले पार्ट। ओके। द कंपनी करेंटली ट्रेड्स एट, जो भी है कितना, ईवी बाई EBITDA currently हाँ trades at this EBITDA, historically the company has enjoyed a EBITDA of 19 times। तो अगर ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, the company should be valued at 19x of FY27 EV by EBITDA। राइट। वो मेरा एक रिपोर्ट है ना, जहाँ पे मैंने ना टोरेंट फार्मा का जो रिपोर्ट है ना, उसमें देखो मैंने लिखा है एक बार, नहीं टोरेंट फार्मा नहीं होगा,
नेटको फार्मा में लिखा होगा, नेटको फार्मा के रिपोर्ट में नेट को फार्मा। देख लेना। हाँ नेटको सर। फार्मा का रिपोर्ट ना इसमें लिखा होगा, मैंने वैल्यूएशन में लास्ट में कैसा लिखा था वो देख लेना एक बार। वो पी के वजह तुमको सिर्फ ई बाई बिटा में चेंज करना। अच्छा सर, देख लूंगा मैं। ठीक है, भेजता हूँ तुमको। ठीक है, भेजता हूँ तुमको। ठीक है, चलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है।